everyone. A very logical day to all of you. हाँ, लॉजिकल तो हमें हमेशा रहना पड़ेगा और रीडिंग भी हमें रोज ही करनी है. तो आज का एडिटोरियल है 20 जनवरी इंडियन एक्सप्रेस का फर्स्ट एडिटोरियल इज द हेल्थ ऑफ स्टेट्स. Let us see what problem there is in the states. Okay, हेल्थ उनके स्टेट्स की हेल्थ कैसे सही होगी, राइट? लाइक दिस इज लाइक पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. स्टेट की कोई हेल्थ होती है क्या? आज बेचारा उदास है या कल उसको कोई डिजीज हो गया, ऐसा. तो अगर ऐसा हमने हेल्थ की बात की है तो इट इज नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ द पर्सन बट इट इज द हेल्थ अकॉर्डिंग टू द financial health, you can say the economic angle of it. So let's see, the debt deficit dynamics of state governments had worsened during the pandemic. Had worsened, so that means it is coming with a flashback. तब क्या हुआ था? The debt to GDP ratio had, for instance, surged. See, he continues with the same trends. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज पे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करेंगे कि उसके साथ साथ हम कैसे अपना पूरा टाइम सीक्वेंस बना सकते हैं. So it is talking about the pandemic. Debt to GDP ratio had surged from 25.3% in 2019 to 31% in 2021. Subsequently, with states staying on the path of prudence, they witnessed a steady improvement across various metrics. ठीक है, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, ensuing, following, ये हमने वर्ड अभी 2-3 दिन पहले ही किया है. So they stayed on the path of prudence, मतलब अपना दिमाग उन्होंने लगाया, सही तरीके से इस्तेमाल किया और तब जाके धीरे धीरे एक steady improvement दिखने लगी across the various metrics. As per the RBI's most recent state finances report, states managed to bring down their debt. मैनेज करना मतलब किसी तरह काम कर लेना, हो जाना काम का, ठीक है, उसे मैनेज कहते हैं. इट इज नॉट लाइक बढ़िया तरीके से हमने कर लिया, नहीं. मैनेज में ये पता चलता है कि रिसोर्सेस हमारे कम थे, somehow we did, right? So we managed to do it. So they managed to bring down the debt to GDP ratio to 28.5% in 2024. However, there is considerable variation across regions. This is the point that the author comes to. राइट, ये तो ओवरऑल उसे कहा पहले 25.3 था, फिर 31% हो गया, अब उसे किसी तरह 28.5 तक लेके आए उसे. लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म नहीं है, सब तरफ एक जैसा नहीं है. इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रीजन. अगेन फॉर इंस्टेंस, the debt to GSDP ratio for Odisha and Gujarat is as low as 16.3% and 17.9% respectively. In comparison, in the case of Punjab, it is as high as 46.6%. Considering this marked divergence, हमें समझ में आ जाता है कि एक इतना है तो दूसरा इतना है. तो these are two different things, divergent. ठीक है, this is, you have understood also, divergent and convergent rays होती हैं. So this divergence means this difference as well as the multiplicity of parameters that can be used to gauge a state's fiscal health. There is a need for a framework. ये आ गया उसकी point. और ये आ गया कौन सी हेल्थ की बात कर रहे थे हम, स्टेट की. फिस्कल मतलब रिलेटेड टू मनी. एंड that not only helps provide an overall assessment of the fiscal position of all states, also allows for comparisons to be drawn. तो फिजिकल पोजीशन पता चल जाएगी और कंपैरिजन से भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है. Few days ago, Niti Aayog released a report which attempts to put forth such a structure. Attempts से हमें ये पता चल जाएगा कि देखो ये पूरी तरीके से सही हो, एक्यूरेट हो, ये जरूरी नहीं है. But this Niti Aayog has actually tried to come up with this comparison. ठीक है. So the point of this paragraph would be, let's see, there's a divergence in the fiscal health of the nations. Nations में states in the nation. ठीक, ये divergence है बस. Now the report has created a fiscal health index, a framework for assessing the fiscal position of states across several parameters. तो एक इंडेक्स बन गया, डेटा आ जाएगा वापस से. 18 मेजर स्टेट्स लेके करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन 5 सब इंडेक्सेस: फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग. ये हैं पैरामीटर्स. तो मैं पर सेकंड पैराग्राफ में पैरामीटर्स आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ विच you will be able to understand on what level or ranking
a particular status regarding these 18 major states in the fiscal health index. So this allows for not only assessing the performance of states across various indicators, but also identifying the areas for improvement and can perhaps help promote best practices. This allows for मतलब इससे benefit क्या होगा? जो benefit होगा वो यहाँ पर दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब है how they are using the fiscal health index and what will be the benefits accrued from this. As per the index, the top 5 performing states are Odisha, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand, Gujarat. While the states of Punjab, Andhra Pradesh, West Bengal, Kerala, Haryana rank at the bottom. तो टॉप 5 हो गए और लोअर 5 हो गए, लास्ट 5, तो बाकी बचे कितने? 8. मध्य प्रदेश ना इधर है ना इधर है, बढ़िया. So in 2022, economists at the RBI had also attempted such a study. Again, past perfect had also attempted. They had identified, continuing in the same tense, Bihar, Kerala, Punjab, Rajasthan, and West Bengal is highly stressed. केरला कॉमन है, बिहार, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एक और बिहार आ गया, ठीक है ना? तो लाइक दीज आर स्ट्रेंथ्स, दीज आर गुड. तो पॉइंट कहाँ है इधर? ये तो सिर्फ स्टेट्स का नाम दिया उन्होंने, ठीक है? कौन अच्छा करेगा और कौन अच्छा नहीं चल रहा है क्या ये? इंडेक्स, इंडेक्स पे रैंकिंग्स, दैट्स इट. So what it is giving you is the benefits of the index. Come to the third paragraph. Despite an overall improvement in recent years, state debt remains well above levels suggested by the FRBM review committee. State government finances also face several risks. Now what you're telling is state debt remains well above the levels, इतना debt नहीं होना चाहिए, तो government finances का भी problem है, risk है. RBI study had identified loss-making power distribution companies, the growing inclination for freebies and realization of guarantees, among others, as areas of concern. So there are several risks that is related to the areas of concern. तो areas of concern कौन कौन से हैं, क्या क्या problem है, ये रही यहाँ पे concern according to the RBI. Now this is so especially for the more indebted states, of course. फॉर इंस्टेंस, अब देखो तीसरी से चौथी बार ऑथर ने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया है इसमें पूरे में कि उसे पॉइंट अपने कह दिए और फिर फॉर इंस्टेंस करके उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया. So in this way you can understand actually the structure, the formation in which the author has written this article. So Niti Aayog report says that states like West Bengal and Punjab have seen increasing debt to GSDP ratios, raising serious concerns about debt sustainability. Same thing, it adds that high persistent deficits and varying fiscal performances among states underscore the urgency. This is the point for reform and targeted interventions. ठीक है, interventions मतलब गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा. In such a scenario, it would be advisable to draw up detailed roadmaps for bringing down debt in a time-bound manner. ठीक है, क्लियर डिटेल्ड रोड मैप होना चाहिए. अब अगर उन्होंने 2 पैराग्राफ्स में कहा है कि दे नीड टू टेक अ स्टेप, देखो अंडरस्कोर दी अर्जेंसी है और यहाँ पे भी हमने कहीं पे नीड टू कहा था. हियर अ नीड फॉर अ फ्रेमवर्क दैट नॉट ओनली हेल्प्स प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट. तो असेसमेंट करनी पड़ेगी, पता चलेगा. ये असेसमेंट के लिए उन्होंने कर दिया, अब उनको रिजल्ट आ गया. रिजल्ट आ गया तो ये पूरा रिजल्ट क्या बता रहा है? तो आपने असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट रिपोर्ट दे दिया, रिजल्ट आ गया कि इतनी स्टेट्स जो है अभी भी प्रॉब्लम है, ये एरियाज ऑफ कंसर्न है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट इज दैट यू नाउ नीड टू bring in reforms. If there is an urgency for reform, but how are you going to bring about the reform? So your course of action will be come up with a detailed roadmap. रोडमैप बन जाएगा, क्यों और कैसे? तो आपके पास डेट जो है वो टाइम के साथ कितना कम हो जाएगा या हो सकता है जहां जहां पे ये हाई लेवल है. तो यू शुड हैव अ गोल क्लियरली पॉइंटेड आउट, स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना गोल मेकिंग स्मार्ट गोल्स होता है. स्मार्ट गोल में आपके पास स्पेसिफिसिटी भी होती है, आपके पास टाइम बाउंड भी होता है, रियलिस्टिक भी होता है. तो आपका अगर ये हाई डेट कम करना होगा ऐसे ज्यादा जो द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं उसमें, तो यू नीड टू मेक अ रोड मैप, यू नीड टू सेट आउट अ डिटेल्ड प्लान, करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाना है उसने कहा था.
तो अब हमारे पास मेजर पॉइंट्स या पैराग्राफ कैसे हुआ बताओ। उसने पहले कहा कि फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसमें? सारे स्टेट्स में नहीं, सम। तो सम स्टेट्स बढ़िया है हेल्थ, और सम स्टेट्स में डेट बहुत ज्यादा है। तो देर इज अ डाइवर्जेंस। जब उसने डाइवर्जेंस की बात की, ठीक है, so there is a divergence. What is understood from here is divergence, right? And then he said, okay, fine, if this is going on, then what do we do? We need to come up with this calculation. तो ये तो आपको करना पड़ेगा। तो उसने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कर लिया। अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स से पता चला कि कई सारे स्टेट्स बड़ी बेकार हालत में है, कुछ स्टेट्स तो अच्छे हैं डेट के मामले में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके लिए? नाउ देयर इज अ नीड और एन अर्जेंसी फॉर रिफॉर्म। अब अगर रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से पता चला 18 स्टेट्स का उन्होंने कलेक्शन किया, डेटा कलेक्ट किया, पता चला 5 कुछ स्टेट्स अच्छे हैं और 6 से 7 स्टेट्स बिल्कुल बेकार हालत में है, तो बाकी के बीच में रहेंगे। ये हमें समझ में आ जाता है। पर देन देयर आर एरियाज ऑफ कंसर्न आल्सो। Now if there is such a lot of concern areas, right? So what do? We need to take a step. And how do we need to take a step for this urgency and need for reform वाले में हम करेंगे क्या? So we need to come up with an action to reduce the debt, and that too in a time bound. तो इस सबका हमें एक डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा। You need to come up with a detailed plan. That's it. अब जो जो चीज हमने डिस्कस की वही इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली। अगर इतना भी तुम्हें समझ में आ गया है तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट नाउ। सो देयर वाज हार्डली एनी डिफिकल्ट वर्ड देयर। यू ओनली हैड टू अंडरस्टैंड द टाइम सीक्वेंस, वो किस तरीके से टाइम बेस्ड बता रहा था कई सारी चीजें। तो इतना डेटा और ये सब बनाना, मतलब वो एनालाइज कर रहे थे ना, तो दिस इज एनालिसिस। सो एनालिटिकल टोन, स्टाइल, आप कुछ भी बोल दो उस तरीके से अपनी पॉइंट रखना, फिर उसको एग्जाम्पल दे देना या जस्टिफाई करना। ठीक है, फिर वापस से उसने अपना पॉइंट रखा, जस्टिफाई कर लिया। सो दिस विल बी लाइक एनालिटिकल, इट कुड बी आर्ग्यूमेंटेटिव, और अगर कहीं और कुछ नहीं हो तो ये इलस्ट्रेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसे हर बात का उसने एग्जाम्पल दे दिया। पर ये एग्जाम्पल डेटा बेस्ड था, एक पर्टिकुलर ऐसा हुआ है करके नहीं था ना, तो ये इलस्ट्रेटिव कम होगा। Right, analytical and argumentative will be the point. Now in between these two also, argumentative और analytical अगर दोनों options होते हैं तो भी ये analytical माना जाएगा। argumentative तो गवर्नमेंट का ऐसा, ऑथर का ओपिनियन ऐसे नहीं है कि चलो मेरा ये ओपिनियन है तो करो जल्दी से काम, ऐसा नहीं था। इसने एनालाइज किया, पूरा सिनेरियो हमें समझाया, एंड में अपना सजेशन किया कि देखो ये पूरी जरूरी है, ये पूरा जो सिनेरियो है, दिस brings out the necessity of having a particular plan of action. Now, having that plan of action is urgent, and therefore, or rather, taking action is urgent, and this should be coming up or starting with a detailed plan that should have time bound and intention, of course, to reduce the debt of the states. Right? And therefore, I said, ये बराबर वो बोल रहा है कि स्मार्ट गोल होना चाहिए हमारे पास। स्मार्ट अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इट इज लाइक स्पेसिफिक। ये स्मार्ट तो शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसको एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक कर लो, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, कर सकते हैं, आर है रियलिस्टिक, हो भी सकता है या नहीं, और टी होता है टाइम बाउंड। ठीक है, एक्रोनिम है, आप अपनी मर्जी के बना सकते हो एक्रोनिम, ऐसे नहीं कि कोई फिक्स्ड है, फिक्स्ड ही रखना पड़ेगा, नहीं। ये गोल्स के हिसाब से, आप अपने पर्सन के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, यू कैन ऐड एनीथिंग, आपके समझ के हिसाब से, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, हाउ यू नीड टू स्टडी, हाउ यू नीड टू रीड, आप अपने अपने एक्रोनिम्स बना ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट गोल्स ऐसे होते हैं, उसी तरीके से इसने कर दिया है ये। ठीक है, कम ऑन। So Niti Aayog report on state finances points to the need for drawing up here detailed roadmap for fiscal consolidation fine. Now, despite an overall improvement in recent years, state that remains well above level, right? So, despite
This is the important sentence, no? तो fiscal consolidation is the need of the hour. ये हो गया, detailed planning जरूरी है. That was the major point given by the author. I hope you have understood this much. Coming to the vocabulary part, as I said earlier, यहाँ पे कोई इतनी difficult words थे नहीं. फिर भी अगर मैं ढूंढूं उसमें तो एक prudence आया, एक subsequently मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था, तो subsequently has a root word that is seque, right? तो coming after या following हो जाता है. तो subsequently का मतलब हो गया following, और I had given you another word ensuing. ठीक है. A prudence is your intelligence, your wisdom when you use it. ठीक है. Prudence is you can say wisdom. ठीक है. Intelligence, and it is like being judicious, having a keen insight. सोच समझ के जब आप काम करते हैं ना, ये सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं, right? You have to take judicious decisions. You take them only when you have acumen. Acumen का मतलब होता है keen insight. आपके उसके बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन incisive knowledge है, deep knowledge है, then you can say that yes, that person has a good business acumen. Acumen से acuity word बन जाता है हमारे पास. ठीक है. तो इंटेलिजेंस हो गया, विजडम हो गया, हैविंग अ कीन इनसाइट हो, और क्योंकि आपके पास एक एक्यूमेन सही है, तो यू कैन कम अप विद बीइंग डिसर्निंग आल्सो. तो डिसर्निंग का मतलब आपको सही और गलत में आसानी से आप यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो दैट बिकम्स डिसर्निंग. क्लियर? So all these are related words. Now why did I use this word multiplicity? यहाँ क्यों लिखा है? आपका टास्क है एक, ठीक है, मल्टी या मल्टा है, जैसे मल्टी विटामिन होता है, vitamins, राइट? मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेट होता है, और मल्टीप्लिकेट से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. नाउ दिस इज वेरी इजी. नाउ इफ आई गिव यू मल्टीट्यूड, तो मल्टीट्यूड से मल्टीट्यूडिनस, मल्टीट्यूडिनस. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज coming up with different suffixes there, because you have one prefix that is multi. ठीक है. मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल एरियाज, मल्टीग्रेन फ्लोर आटा, मल्टीग्रेन आटा. तो मल्टी आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब आप, आपका ये टास्क है इस बार का, राइट? यू कम अप विद द वर्ड मल्टी, एंड यू कैन ईदर मेक अ sun diagram, or as I said earlier also, a tree diagram. अब ऐसे वाली ट्री बनाओ ना जो बचपन में कभी बनाते थे, ऐसे पाम ट्री. इसमें तो बहुत सारे आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे, और साथ में आपकी जो नोटबुक है वो भी बढ़िया हो जाएगी. बट ट्राई राइटिंग दीज वर्ड्स ऑल्सो इन सच अ मैनर कि एक वर्ड से हमारे पास कितने वर्ड्स और बन सकते हैं विद द एडिशन ऑफ द सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस. Right? I hope you get this task of yours. So you need to build your own dictionary, ये तुम्हें पता है. अगर मैं सारे सिर्फ ऐसे ही वर्ड्स दे दूं तुम्हें, तो हाँ, कुछ के तो वर्ड्स मैं दे भी देती हूँ तुम्हें, but this is one task that you have to do on your own. So coming up with second part. यहाँ पे है interventions, यहाँ पे है inclination. ठीक है. यहाँ पे inclination always study, inclination is bent. अभी inclined हमें वर्ड पता है. ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमने की है, और की भी होगी, आई थिंक सो 9th-10th में होगी वो ट्रिग्नोमेट्री. सो इट इज लाइक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. बड़े आराम से हमने ये वर्ड पढ़ा भी है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं. एक देयर इज अ पोल एंड देन द शैडो ऑफ द पोल एंड ऑल दैट, ये सारे क्वेश्चंस किए. तो कैलकुलेट, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा और कॉस थीटा सब आते हैं. इंटरवेंशन हमने बहुत बार आर्टिकल्स में पढ़ रखा है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है इन द जुडिशियल सिस्टम,
or the judiciary intervened because the government was not listening, so the judiciary had to intervene. The governor had to intervene in the working of the CM. कुछ भी हो सकता है, इंटरवीन यानी बीच में आना, ठीक है, ये हमें समझ में आ जाता है। अब हमारे पास ये है वर्ड्स इंक्लिनेशन के। इंक्लिनेशन, क्लेन मतलब लीनिंग, ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा ये है ऑर्बिटल इंक्लिनेशन, कितना है और कितना उसका एक्सिस पे है, राइट। सो इफ दिस एंगल इज द इंक्लिनेशन, मतलब इतना वो चेंज है, झुका हुआ है। अब इसको अगर आप कंटेक्चुअल यूसेज करेंगे तो लीनिंग या बेंट आता है बड़ी सिंपल सी भाषा में, राइट। अब लीनिंग बेंट है, डिविएशन, ऑफ कोर्स दिस इज गेटिंग डिविएटेड, सो यू हैव अ टेंडेंसी फॉर म्यूजिक, राइट। तो झुकाव है, म्यूजिक की तरफ झुकाव है। आप एक हो से मिलिट्री फैमिली में से, आर्मी में आपके पेरेंट्स, और आपका झुकाव जो है वो म्यूजिक की तरफ है। ऐसा होता है ना बहुत बार, आपका कई बार यू कैन सी इट इन द मूवीज आल्सो। बिजनेसमैन है लेकिन बेटे का झुकाव किस तरफ है? म्यूजिक की तरफ। ही वांट्स टू बिकम अ रॉक स्टार, राइट। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। इट इज अ मीनिंग एंड दैट्स कॉल्ड अ भाषा, एक झुकाव। नाउ झुकाव होना इज द इजीएस्ट वर्ड, लीनिंग और बेंट। तो टिल्ट भी हो सकता है ना, फिजिकली ऐसे कोई लीन करेगा, ही वाज लीनिंग अगेंस्ट इट, और तो ऐसे ही टिका हुआ था टेढ़ा, तो ये हो गया टिल्टेड। कुछ भी हो सकता है टेढ़ा, ठीक है। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी, proclivity, so we have this root word clean and we have the root word clay, right। इसका मतलब होता है bend, लीनिंग होना। तो दीज आर द रूट वर्ड्स। अभी आप इससे सोचोगे तो प्रोक्लाइविटी क्या हो जाएगा, कि आपका झुकाव है किसी तरफ, राइट। सो लाइकिंग, और आपका झुकाव किस तरफ क्यों होगा? बिकॉज यू वुड बी लाइकिंग दैट थिंग और द पर्सन। So predilection, proclivity, partial, leaning, tilt, bent, tendency, propensity for something. You can note down all these words. Why? Because all these are used in common articles also. कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे तो लिख लोगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। अब ये वर्ड्स मैंने दिए हैं इंटर के साथ। अब इंटर का मतलब होता है बिटवीन। आप बड़े इजी वर्ड्स लिख सकते हो, इंटर कॉलेजिएट, इंटर स्कूल, इंटरनेशनल और इंटरमीडिएट। तो सिंपल वर्ड्स तो बहुत सारे आप लिख भी सकते हो, but now understand a few of these words. Let us see. Intervention is a to come in between or work as a judge. जैसे आर्बिटर होता है, ठीक है, वो भी इंटरवीन करेगा। दो बड़े लोगों का या कंट्रीज का झगड़ा होता है, तो somebody has to intervene, the UN has to intervene now, तो कोई नहीं मानने वाला है, तो एक को तो किसी को तो आना पड़ेगा बीच में इंटरवीन करने के लिए, राइट। इंटरपोलेट होता है इंटरलोक्यूटर। लोक्यूटर का मतलब क्या हो गया? बीच में बात करने वाला, ठीक है। तो इंटरलोक्यूटर हो सकता है, बिकॉज लोकी इज रिलेटेड टू स्पीकिंग। सो इंटरनिसीन इज quarreling, अपने ही फैक्शंस में, सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटीज में झगड़ा हो जाता है, तो इंटरनिसीन हो जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट हो सकती है। इंटरलोपर यानी कहीं से भी कोई इन्वेडर जैसे आ जाता है वो। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट प्रेशर्स होते हैं, बीच बीच में आना। इंटरस्पोज, इंटरस्पर्स, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना कहीं पे। इंटरट्वाइन इज एंटेंगल्ड। interjection is again expressing in between. Intervene again, as we said, intervention, and interrupt is I was interrupted by somebody here, बीच में। रप्ट का मतलब होता है झगड़ा करना, सॉरी, रप्ट का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। झगड़ा होता है तो बीच में इंटरवीन किया जाता है, दैट वे इट इज। सो ये वाला रूट वर्ड हम फिर कभी करेंगे। एटलीस्ट अभी आप इनमें सारे वर्ड आप लिख भी सकते हो, उनकी मीनिंग आप खुद से लिख सकते हैं। बट देन व्हाट वी नीड इज सिंपल मीनिंग, दैट इज इंटरवीन, सॉरी, इंटर वुड मीन कमिंग इन बिटवीन, ठीक है। चलो, that's all, and thank you, and stay logical and stay positive, and be logical and be positive. So that's all for today.